Assalamu alaikum viewers, Muhammad Nazim with the 6th lecture. Today I'll be talking to you about another important aspect for change, and that is the organization culture. I'll tell you in detail that this is the first thing which needs to be focused on, and that is what will continue on bringing more changes into an organization. But before I start talking about that, let me go back to my last lecture and pick up one or two important things. If you remember, I finished my last lecture on a note that for the managers of today or for the managers of tomorrow, there's one lesson they must learn, and that is there are only two kinds of organizations. Those that keep on changing. Those are those which are changing. And the other ones which are disappearing, getting out of business. तीसरी organization कोई नहीं है. The message was that constant change is the way of life. मैंने इस नोट के ऊपर अपना लेक्चर खत्म किया था और मैंने आपको कुछ मैसेजेस भी दिए थे. जैसे मैंने शुरू में कहा था कि I'll be talking to you at times to motivate you to get lessons, to get certain directions from my lectures and start bringing change in yourself too. फिर मैंने last lecture में when I talked about the 5 stages of the OD process, तो पहली stage OD की जिसमें मैंने ये कहा था कि there need to be somebody who recognize the need for change. पहला premise OD का ये था कि there must be somebody who feels the need for change, who recognizes that the organization needs change. When there is so much emphasis on change, then we must understand where does change come from. ये change हमें लाना कैसे है? अगरचे मेरे लेक्चर के अंदर I'll be giving you lots of references of the social scientists जिन्होंने एक scientific base बनाई change के लिए, लेकिन आज थोड़ा सा slightly deviate करते हुए आपको ये बताना चाहूंगा कि you and I know one thing, that change starts from the head. It's here that once we decide, once we start thinking about change, then we will take the first step to change. Chinese में एक बहुत अच्छी proverb है that the fish starts rotting from the head. मछली जब खराब होती है तो सबसे पहले you smell the head, and if it's stinking, that means that the rest of the part will start stinking too. There's a great message in it. जो भी change इंसान की जिंदगी में आता है, अच्छा या बुरा, दिमाग से आता है. जो आप सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा चेंज आता है. अगर खराब सोचने लग जाते हैं, and deterioration starts. If you keep this thing in mind, then you will start focusing on कि अगर हमने चेंज जिंदगी के अंदर लाना है, तो हमारा पहला स्टेप ये होना चाहिए कि we must start thinking कि हमने चेंज लाना है. मतलब ये कि we'll start observing and we'll start picking up threads and see what are the needs and how do we have to change ourselves. जब मैं चेंज की बात करता हूं तो ला महाला एक और एस्पेक्ट पे हमारी नजर जानी चाहिए, और वो ये है हमारा एटीट्यूड, हमारी वैल्यूज, हमारा बिहेवियर, बिकॉज these are the fundamental things which will bring change. क्योंकि आप जब सोचेंगे, आपकी assumptions, आपका belief system change होगा, you will start believing कि नहीं ये चीज गलत हो रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए. आपका belief system change होगा. जब आपका belief system change होगा, आपकी values change होंगी. जब आपकी values change होंगी, आपका behavior change होगा. आगे जाके मैं इस पे बहुत डिटेल में बात करूंगा, but just to introduce the subject, to give you a definition of
ऑर्गेनाइजेशन कल्चर दिमाग में ये रख कर आगे चलें कि इसी तरह जब हमारी कल्चरल चेंज एक पर्सनैलिटी में लाने के लिए हमें इन चीजों पे गौर करना पड़ता है, तो ऑर्गेनाइजेशंस में भी एग्जैक्टली बिकॉज आई टोल्ड यू इनिशियली दैट ऑर्गेनाइजेशंस बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स, लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे एक लिविंग सिस्टम है, एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरह से बिहेव करती है. तो टुडे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, I am keeping in mind this very thing, and I would like you to keep your focus on कि cultural change तभी आएगा चाहे वो किसी शख्स में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, मुल्क में हो, नेशन में हो या ऑर्गेनाइजेशन में हो, जब हम इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे. Now, the question is that what is organization culture? Organization culture is the personality of an organization. जिस तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, और फॉर अ मोमेंट थिंक ओवर इट, हाउ वुड यू डिफाइन योर पर्सनैलिटी? परहैप्स यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इट, क्योंकि कल्चर को डिफाइन करना आसान नहीं. बट इफ आई टेल यू, हाउ डू यू ड्रेस अप, हाउ डू यू टॉक, how do you carry yourself, how do you interact, how do you deal with juniors, seniors, your peers, this in totality reflects the culture. Aapki personality is composed of these things. Of course, you are picking up from your traditions, from your beliefs, and that's why the way you behave, the way you interact with people, that comprises your personality. Organizations की भी इसी तरह से पर्सनैलिटी बनती है. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नॉर्म्स, वैल्यूज, एटीट्यूड, ये सारे रिफ्लेक्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है. सो अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस पे नजर डालें और कंपेयर करें, can you distinguish the various cultures prevalent in various organizations? Perhaps you will say yes. एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से डिफरेंट है. एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एक दूसरे हॉस्पिटल से डिफरेंट है. सर्विस ऑर्गेनाइजेशन could be a restaurant, a marketing concern. Of course, hospital is a serving organization too. फिर सर्विसिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ कल्चर डिफर करेगा. एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉफिट मेकिंग के साथ डिफर करेगा. Here you can make out, because when you walk into an office which is a public office, you will see a marked difference. कैसे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसा फर्नीचर है, कैसे एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं. सो वर्चुअली लुकिंग एट द सेटअप, द फर्नीचर, व्हाट दे आर प्राउड ऑफ, हाउ दे इंटरैक्ट, व्हाट दे फील अबाउट अदर पीपल, you will clearly find that there is a marked difference in the way people behave. So, now knowing that मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का मुख्तलिफ कल्चर है, तो एक बेसिक क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए, what makes these organizations behave differently? And also, why do we need culture? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कल्चर की क्या जरूरत है? The answer is that corporate culture controls the way the people in an organization interact with each other and the stakeholders outside the organization. अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉर्पोरेट कल्चर ग्रो नहीं करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे, the people will not know how to interact. अब ये जब आपकी डेफिनेशन आपके जहन में रहेगी, and now if you look at the various organizations जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, you will see the marked difference
थाना कल्चर देख लीजिए. एक policeman sitting in a thana behaves differently. A traffic sergeant in a city behaves differently than the one on the motorway. And you can distinguishedly say, this person is from that sector, this is from another. Because unke functions, unki needs, unki training, unka attitude, unka behavior has been like that. So that is why when you go on a motorway, you find there they behave differently than when you go in a thana. A policeman behaves differently. So basically, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर इसलिए डेवलप किया जाता है ताकि उनको ट्रेन किया जाए कि वो लोगों के साथ किस तरह बिहेव करेंगे, अपने लोगों के साथ कैसे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिहेव करेंगे और बाहर कैसे बिहेव करेंगे. नाउ हैविंग कम टू दिस पॉइंट, वेयर डज दिस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कम फ्रॉम? बेसिकली हमारा बिहेवियर is determined by our norms. गाइडलाइंस क्या हैं और हमारी नॉर्म्स कहां से आती हैं? हमारी वैल्यूज क्या हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यूज सेट की गई हैं, और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वैल्यूज आती हैं जो कि बिलीफ सिस्टम, जो एजम्पशन से. मैं इस पर डिटेल में गुफ्तगू करूंगा. फॉर द टाइम बिंग जस्ट कीप इन माइंड दैट ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज आर बिलीव्स एंड आइडियाज about what kind of goals members of an organization should pursue. अब यहां से आपको बड़ा क्लियर होगा कि वो ट्रैफिक सार्जेंट जो कि मोटरवे पे ऑपरेट कर रहा है, वो कौन से गोल्स परस्यू कर रहा है. वो ट्रैफिक की कंजेशन नहीं करने देता, वो ओवर स्पीडिंग नहीं करने देता, वो गाड़ियों को वहां रुकने नहीं देता कि वहां एक्सीडेंट्स ना हो, बिकॉज स्पीडी ट्रैफिक है वहां के रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है. सो देयरफॉर द कल्चर हैज बीन डेवलप्ड अकॉर्डिंगली. नाउ फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज आर डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स, जिसे मैंने कहा कि गाइडलाइंस दैट प्रिस्क्राइब द काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. हैविंग क्लियर दैट कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डेवलप होता है और उसके लिए उसकी फाउंडेशन क्या है, you will now get a fair idea कि people at the top, chief executive officers, या for that matter, board of governors, या anybody at the top determines कि मैंने किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन बनानी है और या हमने कैसी बनानी है. Shares that idea, shared, and then further develops various values, norms, guidelines, and आगे behavior. डिटेल में मैं अभी थोड़ी देर बाद बात करूंगा. Having said that, how would I define corporate culture? Definition आप उनके वर्ड्स पे गौर कीजिएगा. The culture of an organization is its customary and traditional way of thinking and doing things. Very clear. It's a traditional way. You have set a tradition in an organization. How to think and how to do. Because collectively, ये नहीं एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट किसी और तरह काम कर रहा है, दूसरा किसी और तरह से काम कर रहा है. Of course, there will be variation. मैं ये भी बताऊंगा कि थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन ओवरऑल जो गोल है उसके लिए need to be determined क्या way of thinking and doing things. And this which is shared to a greater or a lesser degree by all its members. Keep in mind, देखिए मैंने क्या कर रहा हूं, shared to a greater or a lesser degree. मैं ये नहीं कर रहा कि बिल्कुल उसके साथ आपने शेयर करना है, मैं इसकी वजह आगे जाकर बताऊंगा. And which new members must learn and at least partially accept. कितनी इस डेफिनेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट जो नया बंदा आ रहा है वो इसको पार्शली एक्सेप्ट करे, बिल्कुल टोटली डिविएट ना करे, क्योंकि अगर डिविएट करेगा तो उसके असरात क्या होंगे, विल टॉक लेटर. So culture covers a wide range of behavior. And क्या behavior? The methods of production, job skills and technical knowledge, attitude towards discipline and punishment, the custom and habit of managerial behavior. Manager ने कैसा behave करना, that is also included. Its way of doing business,
the methods of payment, the values placed on different types of work, beliefs in democratic living and joint consultation. Very clear definition. And you must have seen from this definition, there's a lot of room for maneuverability. ऐसी definition नहीं कि we have laid down point blank और आप इसे deviate नहीं कर सकते. Democracy का भी जिक्र हुआ है. और दूसरी values ताकि a flexibility to the people so that they could change as well, keeping in mind the greater goal and objective of the organization. Now, having said that, let me take you to the various levels of organization culture. आपको मैं स्क्रीन के ऊपर लेवल्स दिखा रहा हूं. 4 लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के. At the base, shared assumptions. Assumptions basically are beliefs. But shared beliefs हैं, shared assumptions हैं. क्या मैंने शुरू में कहा था? Assumptions, these belief हमारे जो हैं, they are basically assumptions which tells us about ourselves. What do I believe in? And it also tells us about how we see the world. Do I believe in sincerity, honesty, hard work, sharing others' problems? So, मैं दुनिया को कैसे देखता हूं? और मैं लोगों से क्या एक्सपेक्ट करता हूं? मेरे बिलीफ्स यहां से. How we expect things to be. मैं अपने गिर्द में किस किस्म का माहौल चाहता हूं? मैं क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहा हूं, तो मैं इसमें क्या देखता हूं कि लोग कैसे काम करेंगे? How we think things really are. What we think is really true. ये सारी चीजें हमारा बिलीफ सिस्टम, ऑफ कोर्स हम बहुत सारी चीजें अपने मजहब से लेते हैं, तो यहां से हम आ जाते हैं वो बेसिक वैल्यूज जो हम कैरी करके एक ऑर्गेनाइजेशन को विजुअलाइज करते हैं. एंड माइंड इट, दीज बिलीफ सिस्टम्स हम बनाते हैं. हम ये लेके पैदा नहीं हुए बिलीफ्स को, हम लर्न करते हैं और दीज बिलीफ्स हम अपने आप में एनग्रेन करते हैं वक्त के साथ साथ. बट अगेन आउट ऑफ दीज assumptions emerge the values. Values क्या हैं? Values are about how we have learned things ought to be or people ought to behave. मेरा एक बिलीफ सिस्टम है कि हमने इकट्ठे रहना है, हमने एक दूसरे की हेल्प करनी. लिहाजा people around me, I will tell them, I'll train them, I'll teach them. When somebody is in problem, in trouble, listen to the other person, right? So, especially the values in terms of honesty, integrity, openness, ये कहां से इमर्ज होंगी? हमारे बिलीफ सिस्टम से. So, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब आप देखेंगे, and when you will look at the values जो उनके लोग, workers, management, the overall organizations में काम करने वाले लोग कौन सी वैल्यूज को कैरी करते हैं, याद रखिएगा वो इन्हीं बेसिक शेयर्ड assumptions से ओरिजिनेट होती. मैं आपको I was looking to the various values जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह करती हैं, तो मेरी नजर से एक ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज गुजरी, एंड यू विल बी अमेज्ड कि वो वैल्यूज हर एम्प्लॉय ने एक कार्ड के ऊपर वैल्यूज लिख के अपनी जेब में डाली हुई होती. एंड वेयरएवर दे गो दे कीप इन माइंड दोज वैल्यूज. हर वक्त उनको याद आती हैं एंड दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोज वैल्यूज, दे स्टार्ट लिविंग दोज वैल्यूज. वैल्यूज क्या हैं? अमेजिंगली, पैशन फॉर एक्सीलेंस. They're always looking for excellence. They hate bureaucracy. They do not like anybody to tell them क्या करना है या किसी से पूछें जाके क्या करना है. Bureaucracy को hate करते हैं. Bureaucracy means somebody at the top telling them what to do. And if you don't do it, they punish you. Now, open to ideas from others.
कितनी खूबसूरत उनकी उनकी वैल्यू है, किसी और से, जूनियर सीनियर से, गरीब से, अमीर से, उनके आइडियाज सुनते हैं उनको, एंड दे आर ओपन. A poor man can give you a good idea too. A man from outside the organization can give you an idea too. They reward progress. ये नहीं कि कितनी देर से काम कर रहे हो, कितने सीनियर हो. नो, प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस के ऊपर. ये वैल्यूज कहां से आई? Somebody at the top must have thought ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जिनमें हमारी बेसिक, ये सेकंड लेयर की बात कर रहा था. थर्ड लेयर में शेयर्ड बिहेवियर. व्हेन यू आर कैरिंग सच वैल्यूज विद यू, जेब में आपने ये वैल्यूज कैरी की हुई हैं, ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर क्या होगा? योर पैशन फॉर एक्सीलेंस है. आप जहां भी आपसे गलती होगी, आप मानेंगे भी मुझसे गलती हो गई, मैं अल्फाज वापस लेता हूं. मैंने तुम्हें गलत ऑर्डर दे दिया था, मैं ऑर्डर वापस लेता हूं. एक्सीलेंस है भाई, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए. बिहेवियर आपका ऐसा है. हेट ब्यूरोक्रेसी, भाई मुझसे गलती होगी, मैंने गलत डिसीजन लिया. ग्रेटनेस इसी के अंदर है कि आपने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, और आपको देखकर आपके जूनियर्स, आपके कलीग्स भी ऐसा ही करेंगे, और टीम स्पिरिट आएगी, एंड द ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो. बिहेवियर विल इमर्ज. बीच में एक चीज है जो कि नॉर्म्स हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि वैल्यूज से फिर आप नॉर्म्स बनाते हैं. कौन से नॉर्म्स आपने कैरी करना है जिसके ऊपर डिविएट नहीं करना, और कुछ नॉर्म्स के ऊपर आप डिविएट करते हैं. जैसे मैंने कहा था, फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ी गई है. शेयर बिहेवियर के बाद आता है कल्चरल सिंबल्स. जब आप इस तरह से बिहेव करते हैं सोसाइटी के अंदर, तो यू बिकम अ रोल मॉडल. चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल हो, चाहे पूरी टीम हो, आपका उठना बैठना, आपका लिबास, आप जो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, आप जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप जिसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिन लोगों के साथ मिलते हैं, ये सारे सिंबॉलिक हो जाते हैं. आप मोटरवे पे जा रहे हैं, आपको एक निशान नजर आ रहा है, भूख लगी हुई है, आप फौरन रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं कि दिस सिंबल रिफ्लेक्ट समथिंग. आप वो आपके लिए एक ऐसा सिंबल, आपको पता है कि वहां का कल्चर क्या है, वहां का क्वालिटी फूड मिलेगी आपको. आपने शर्ट पहनी हुई है, उसके ऊपर एक खास किस्म का जानवर बना हुआ है, आप कह रहे हाँ, इसका मैंने ये कपड़ा अच्छा, इसकी कटिंग अच्छी है, इसका स्टफ अच्छा है. सो ये सिंबॉलिक हो जाते हैं, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल कल्चर प्रेवलेंट. देखिए, इसी तरह से शेयर्ड assumptions, कल्चरल वैल्यूज, शेयर्ड बिहेवियर एंड कल्चरल सिंबल्स. हैविंग अंडरस्टूड दैट, यहां से आपको एक चीज बड़ी वाज़ेह हो जानी चाहिए कि कल्चर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है विजिबली, और एज वेल देयर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर इनविजिबल. सो कल्चर अपनी मैनिफेस्टेशन करता है अपरेंटली भी, और कुछ हिडन होते. मैं आपको कुछ विजिबल मैनिफेस्टेशंस कल्चर की दिखा रहा हूं, जिसके अंदर क्या है? ड्रेस कोड है, वर्क एनवायरमेंट है, बेनिफिट्स हैं, पर्क्स हैं, कन्वर्सेशंस हैं, वर्क लाइफ बैलेंस है, टाइटल्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शन है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है. शुरू में मैंने आपको कहा था, यू वॉक इन एन ऑफिस, यू कैन मेक आउट व्हाट द कल्चर इज. वॉकिंग इन एन ऑफिस इज, तो बात की बात आती है जब अगर गाड़ी में जाकर आप पार्किंग लॉट में जब आप गाड़ी को पार्क करते हैं, और वहां आदमी हु इज इन चार्ज फॉर द पार्किंग लॉट, द वे ही बिहेव्स विल रिफ्लेक्ट यू कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, वर्क एनवायरमेंट क्या है, वहां का लोगों को क्या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं. मैंने आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल दी थी ओडी इन प्रैक्टिस में, कि ऑल पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन वर पार्टनर्स, डिसीजन मेकर्स, दे वर ऑल मैनेजर्स. उनमें कोई जूनियर सीनियर था ही नहीं. उनके पर्क्स क्या थे, उनके एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड टू देम. वर्क लाइफ बैलेंस, ये नहीं कि सारा दिन आप काम ही कर रहे हैं, हर वक्त यू थिंकिंग ऑफ, नो, कभी कभी पिकनिक्स पे भी जा रहे हैं, कभी कभी फैमिलीज के साथ भी जा रहे हैं. सो ऑल टाइटल्स एंड जॉब, आपको टाइटल बता देगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है. यू वॉक इन एन ऑफिस, और पता लगता है आपको कि ऑफिस के बाद
चपरासी बैठा हुआ है, वो कहता साहब से मिलना है, कहता साहब से आप नहीं मिल सकते, और थोड़ी देर के बाद आपको वहां से अंदर से वो बटन दबाता है, चपरासी अंदर चला जाता है, फिर बाहर आता है, बिकॉज द बॉस इज नॉट एक्सेसिबल टू एनीबडी। ये खास कल्चर है। एक और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, चपरासी नहीं बैठा हुआ, अगर फाइल भी है तो बॉस लेकर नीचे चला जाता है। अगर फ्रंट डेस्क के ऊपर सेल्समैन कहीं थोड़ी देर के लिए जाना चाहता है तो टॉपमैन आके बैठ गया, इंटरेक्टिंग विद कस्टमर, एंड मे बी इवन वांट्स टू इंटरेक्ट विद कस्टमर्स टू फाइंड आउट व्हाट इज द रियलिटी ऑन ग्राउंड। सो हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट कल्चर है, एंड दैट विल रिफ्लेक्ट कि ओवरऑल रिलेशनशिप कैसे डेवलप की गई है। टॉकिंग अबाउट द इनविजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ कल्चर, there are far more powerful aspects of culture and that are embedded in the invisible parts. वो कैसे? अभी मैंने आपसे बात की। Values, invisible rules. Let me ask you one question. How do you react when you come across a foreigner? Immediately you will say, oh, we are always very friendly, we are very hospitable. What if that foreigner wants to join your group, wants to work with you in an organization? आपका behavior कैसे होगा? For a second, you will have to think. Because you know one thing, that working in an organization requires conformity of action and behavior. And people working with you exactly know what is the culture of the group or an organization. When a foreigner comes in, unless and until that person adapts to the environment, you will not be very accommodating. You'll always be scared. Obvious है, हम सब conformity चाहते हैं, लेकिन क्या ये रूल्स ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स में लिखे होते हैं? नहीं, ये इनविजिबल है, वैल्यूज हैं। ऑब्वियसली एनीवन कमिंग इन मस्ट अंडरस्टैंड कि कल्चर में कुछ ऐसे नॉर्म्स, वैल्यूज, एटीट्यूड, प्रैक्टिसेस विच द वन कमिंग फ्रॉम आउटसाइड हैज टू adhere to. मैंने आपसे कहा कि conformity चाहते हैं. Keep in mind, conformity does not mean anybody outside coming in and would exactly do the way you want them to do. आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि even in one organization, culture के अंदर भी सब cultures होते हैं. Like here I have shown to you इनविजिबल कल्चर के अंदर वर्ल्ड व्यूज भी हैं, बिलीव्स हैं, मूड्स, इमोशंस हैं, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है, ये सारे इनविजिबल मैनिफेस्टेशंस हैं. जब मैं वर्ल्ड व्यू की बात कर रहा हूं, और मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि एक ही किस्म का कल्चर नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सब कल्चर्स टू एग्जिस्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन. वो कैसे? एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, सेल्स डिपार्टमेंट का और फाइनेंस डिपार्टमेंट का, तीनों का सब कल्चर डिफरेंट है, वर्ल्ड व्यू डिफरेंट है. सेल्स डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को के गोल को मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं. फाइनेंस डिपार्टमेंट का के सारी टीम मुख्तलिफ तरीके से देखेगी. द वर्ल्ड व्यू इज डिफरेंट, उनके पैराडाइम्स डिफरेंट है, रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. फ्रंट डेस्क के ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है, जिसका कि कस्टमर के साथ इंटरैक्शन है, would need to be there on specific time. मार्केटिंग का मैन आदमी बाहर गया हुआ होगा, or for that matter finance person can come late, but the one interacting cannot afford it. So there you understand, okay, when we talk about corporate culture, सब culture है, but सब cultures deviate नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से. तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें इनविजिबल हैं जो कि मैनिफेस्टेशन उनकी ओपनली नहीं हो सकती. वन कैन नॉट मेक आउट. समटाइम्स द डिसीजन टेकन बाय अ जूनियर इज नॉट रिटन इन द बुक. जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी थी, द लेडी हु गेव मी, हु रिप्लेस्ड माय कोलोन. कुछ देर पहले मैंने आपको कहा था कि नॉर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं. नॉर्म से बिहेवियर का पता चलेगा. Organization norms, they are developed from
organizational values which are reflected in the kind of behavior an employee exhibits in a particular situation. आइए हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स कितने किस्म के होते हैं. 2 किस्म के नॉर्म्स pivotal norms हैं और can be peripheral norms. When I say pivotal norms, they are the norms essential to accomplish the organization's objectives. ऐसे norms जो कि solely organization के goals और objectives को achieve करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि conform करना है certain practices को. मार्केटिंग का आदमी मार्केट में जाकर इंटरेक्ट करता, लेकिन सेल्स का बंदा हैज टू बी देयर एट स्पेसिफाइड टाइम पे. सो ये जो प्रेशर है टू ऑफ कंफॉर्मिटी टू सर्टेन वैल्यूज आर पिवटल नॉर्म्स. कभी आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कभी आप नहीं करेंगे. बट ऑर्गेनाइजेशंस, ideal organizations, growing organizations do provide some flexibility. ये उस बात का मैं जवाब दे रहा हूं जो कि मैंने डेफिनेशन में कहा था कि you do not necessarily have to conform strictly, जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डिफाइन किया. बट पिवटल नॉर्म्स को सेक्रीफाइस करना मुश्किल है. पिवटल नॉर्म्स यही है कि आपने ऑनेस्टली काम करना है, आपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को जहन में रखते हुए सारे एक्शंस लेना है. एंड एनी अदर नॉर्म्स विच सपोर्ट योर पिवटल नॉर्म्स आर पेरिफेरल नॉर्म्स, लाइक ड्रेस. इट कुड बी पिवटल और इट कुड बी पेरिफेरल. अगर मैं ये कहूं कि असेंबली लाइन पे बंदा बैठा हुआ, वो कहे जी मैं तो धोती पहन के बैठना चाहता हूं. नाउ सेफ्टी रिक्वायर्स हैज टू बी इन अ स्पेशल ड्रेस. तो ये एक पिवटल नॉर्म बन जाएगा. लेकिन if you are interacting, you are going out in the field, marketing में है, तो वहां ड्रेस एक pivotal norm नहीं होगा. Therefore, it is important कि आप इन norms में आपको distinguish करना पड़ेगा कि कौन से norms pivotal हैं और कौन से norms peripheral हैं. Normally, employees को इसके अंदर काफी कंफ्यूजन पैदा होती. एंड दिस इज व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम सारे नॉर्म्स को पिवटल नॉर्म्स रख दें तो फिर तो वो एक ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती. बिकॉज समटाइम्स यू आर वर्किंग ऑन अ लेथ मशीन और बुक्स में लिखा गया कि इस तरह से मशीन को ऑपरेट करना है. बट वाइल ऑपरेटिंग द टेक्नीशियन फाइंड्स आउट कि नहीं, अगर मैं इससे थोड़ा सा डिविएट करूंगा तो जल्दी अच्छा प्रोडक्ट कर दूंगा. तो वो आउट ऑफ बुक अगर जब काम करता है तो वो क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए वो थोड़ा सा उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जाहिर करता है. सो इधर से फिर एक चीज निकलती है कि सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है. क्योंकि नए आने वाले एम्प्लॉय को हमने बताना है कि कैसे उसने जो नॉर्म्स को एड्रेस करना है. न्यू एम्प्लॉयज दे आर लाइकली टू डिसएग्री विद or they might question the customs and values that already exist. इसलिए बाहर के नया बंदे को जब ऑर्गेनाइजेशन में उसने एंटर करना है तो उसको एक सोशलाइजेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. And this socialization process is the process that adapts employees to the culture. This is very important. जैसे मैंने शुरू में conformity की बात की थी. अगर conformity नहीं होगी तो वो एम्प्लॉय भी खुश नहीं होगा और हार्मोनियस रिलेशनशिप भी नहीं होगा. और ये मैनेजर्स के लिए और मेंबर्स के लिए भी बहुत जरूरी है कि दे मस्ट रिकॉग्नाइज हाउ शार्पली नॉर्म्स आर डिफाइंड एंड हाउ स्ट्रांगली दे आर एनफोर्स्ड. कौन से नॉर्म्स हैं जो कि आपने स्ट्रांगली एनफोर्स करने हैं, डिस्टिंक्टिवली लोगों को बताने हैं, और कौन से नॉर्म्स हैं खुले छोड़ देने हैं ताकि दे कुड एडजस्ट अकॉर्डिंगली. नाउ to work together effectively, individuals need to understand things like power, status, rewards, and sanctions for specific types of behavior. You understand? बाज़ organizations बड़ी
इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो जब कोई नया मेंबर उनके ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो कुछ लोगों को वो डिप्यूट करते हैं कि इनको सोशलाइजेशन प्रोसेस से गुजारना है. सो न्यू मेंबर्स वर्क अंडर सम अदर एम्प्लॉइज हु आर फेमिलियर विद द नॉर्म्स. एंड व्हाट हैपेंस इज कि वो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है टू ट्रेन देम, एंड लाइकवाइज they too take interest so that the new employee gets to know the norms, the behavior, the attitude, the culture, ताकि उनका team work, and they are rewarded for that by making the other people accept the norms of the organization they have joined. Now, if new members find that the norms are unclear, confusing, and restrictive, they may react in 3 different ways when entering an organization. Obviously, आप आते हैं, आपको नॉर्म्स पसंद नहीं आते, and you're used to different sorts of environment. कैसे रिएक्ट नया मेंबर करेगा? पहला, रिबेलियन हो जाएगा, will reject all values and norms, और कंपनी को छोड़ जाएगा. दूसरा, कंफॉर्मिटी, जो मैंने आपको कही, accept all values and norms, resulting in stagnation, non-responsiveness, and a loss of creativity. Now you understand कि मैंने शुरू में कहा था, उन्होंने डेफिनेशन में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी. You don't have to adhere exactly कि नॉर्म्स क्या हैं. You can. तीसरा तरीका है creative individualism. Accept only pivotal values and reject all others. Mostly जो आइडियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसी तरह से बिहेव करती. मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया कि बेसिक रिस्पॉन्स टू सोशलाइजेशन कैसे. सेंटर में वो लोग हैं जो कि क्रिएटिव हैं. दे एक्सेप्ट ओनली दोज वैल्यूज विच दे फील आर गुड वैल्यूज और जिनसे क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, बट दे रिजेक्ट अदर वैल्यूज. और जो बिल्कुल कंप्लीटली उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंफॉर्मिटी में टूथ एंड नेल, एक एक वर्ड बाय वर्ड, दे बिकम स्टैग्नेंट. जो बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, दे बिकम rebellion. It is often difficult for a newcomer to correctly determine which norms are peripheral and which are pivotal. What may be a pivotal norm in one department may be a peripheral norm or not a norm at all in another department of the same organization. जैसे मैंने आपको कहा था शुरू में कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के पिवटल नॉर्म्स और हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट पिवटल नॉर्म्स और हैं. तो ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो ओवरऑल इन ऑर्गेनाइजेशन, सिंस नॉर्म्स आर चेंजिंग एंड दे आर डायनामिक, द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर मस्ट हैव द अवेयरनेस to discern, to distinguish between the differences between pivotal and peripheral norms. ये एक वर्कर अच्छी तरह से खुद डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर सकता है. एंड ओनली जो हेल्दी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे विल अलाउ देयर मेंबर्स टू चैलेंज देयर नॉर्म्स. आइडियल ऑर्गेनाइजेशन, हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन विल लेट द मेंबर्स चैलेंज द नॉर्म्स. क्योंकि जब तक कोई नॉर्म्स को चैलेंज नहीं करेगा, नए रास्ते नहीं निकलेंगे. एंड दिस इज द एम ऑफ द ओडी प्रैक्टिशनर, टू डेवलप एन ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट दैट इज एप्रोप्रिएट टू द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन एंड मेंबर्स. ओडी के जो प्रैक्टिशनर है, उसने इस बात पे बहुत फोकस करना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स क्या हैं, बिहेवियर कैसे लोगों के ऑल्टर करना है और उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी देनी. OD seeks to develop the organization to the point that it feels comfortable about allowing its members to openly examine the norms. ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. अगर नहीं है तो वो एक बिल्कुल मिलिटरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन होगी. बुक के साथ जाना पड़ेगा, ऑर्डर है एग्जीक्यूट करो, नथिंग डूइंग, ऑटोक्रेटिक है. दैट्स व्हाई ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज की अलाउंस नहीं है. The reaction of the individual to the norms results in the formation of an unwritten agreement with the organization. अब, having known that कि एक unwritten agreement है, लेकिन उससे पहले मैं आपको socialization process का एक और आपको दिखाता जाऊं
another aspect कि socialization occurs in 3 stages. देखिए, एक है प्री अराइवल, इसलिए मैंने कहा था कि नॉर्म्स को हम कैसे इनकलकेट करते हैं. आपने देखा न्यू एम्प्लॉइज की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. दिस स्टेज encompasses all the learning that occurs before a new member joins the organization. यहां हम नए मेंबर को बता देते हैं क्या क्या चीजें, what are the expectations. Second is the encounter stage. The employee sees what the organization is really like and confronts the possibility that expectations and reality may diverge. यहां मैंने कहा था कि या तो वो दोनों एक्सट्रीम्स पे चला जाएगा या वो क्रिएटिव हो जाएगा. This is where a person encounters the culture. Third here is the adjustment to cultural norms. Means metamorphosis stage, conversion stage. The employee masters the skills required for the job and successfully performs his or her own roles and adjusts to the norms and values of the work group. जब यहां metamorphosis हो जाती है तो उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं? परफॉर्मेंस, कमिटमेंट एंड दी गोल्स. सोशलाइजेशन प्रोसेस के से गुजरने के बाद एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है मेंबर का ऑर्गेनाइजेशन के साथ. एन अनरिटन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशंस हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मेंबर्स. अनरिटन है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने ऑनेस्टली काम करना है. ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपने सिद्ध के दिल से काम करना है. ये कहीं बुक में नहीं लिखा होता कि आपने डिले नहीं करना. आप काम कर रहे हैं, कहेंगे भाई इसको तो लगता ही 4 घंटे लगेंगे इसको, हालांकि आधे घंटे में भी आप कर सकते होंगे. एफिशिएंसी, हाउ यू डील विद योर कस्टमर्स, हाउ टू मेक योर कस्टमर्स हैप्पी. ये कॉन्ट्रैक्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट you have signed with the organization. Similarly, the individual has certain expectations from the organizations. He should be compensated. उसको job opportunities मिलनी चाहिए, वगैरह वगैरह. So, because the two parties are growing and changing, the contract may be open-ended so that old issues and new issues can be negotiated. So, that was all what I wanted to tell you about the organization culture. आज का लेक्चर खत्म करने से पहले I would like to tell you about an organization. As I said to you earlier, बहुत पहले मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि मैं आपको केसेस और एग्जाम्पल्स भी आपको बताऊंगा, आपको लाऊंगा. I'll even involve you in few cases. आज जो मैं आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूं, it's a very small company. And that company will show you what is the worth of a culture. Somewhere in the US, the founders of a very small company, having about, say, 30 employees, काम भी वो designing or factory automation equipment, specialization in that area, 30 employees only. When they were thinking of creating this company, they had something unique in their mind. And they had an idea of creating a company with a special culture. So, culture specific company को ज़हन में रखते हुए उन्होंने start की. And after very short period of time, became very popular. और उनकी जो niche area था, वो था project management and open book accounting. छोटी सी कंपनी है, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट बना रही है. When the news spread around, उसका उनके कंपेटिटर्स में से एक बंदा, जिसका CEO, requested the CEO of this company that he would like to visit and see how does people work. So when he visited this company and was going around with the manager, he saw a board. एक फ्लोर के ऊपर कुछ मशीनें, वहां 10 मशीनें, 12 मशीनें, और उसके ऊपर 8-10 बंदे काम कर रहे हैं. And he saw a board, 20 rows and 10 columns. और हर रो के अंदर कोई फिगर लिखी हुई.
he asked this visiting CEO, asked the manager, can you explain me this boat? He said, this is something very special, and every worker exactly knows what is written there in the columns. And he started explaining to him कि वो figures कैसे, कहाँ से originate होती हैं, वो figures कैसे calculate करते हैं, और ये figures क्या reflect करते हैं. While he was explaining, he suddenly stops and says, I should not be explaining you this boat. Let one of my technicians explain you this. और वो फ्लोर से टेक्नीशियन जो काम कर रहा था उसको बुलाया और उसे कहा कि explain our visitor what is this boat. उस बंदे ने एक एक चीज एक्सप्लेन की और ये भी बताया कि लास्ट वीक यहां ये फिगर थी एंड ईच फिगर इन अ कॉलम शोज द ग्रॉस प्रॉफिट पर आवर वी आर मेकिंग. लास्ट वीक इतना ग्रॉस प्रॉफिट था, आज हर प्रोजेक्ट के ऊपर ब्रेक डाउन करके इतना ग्रॉस प्रॉफिट है. एंड वी कीप आवर आईज फोकस्ड ऑन दिस बोर्ड बिकॉज वी नो दैट this is what is going to guide us and tell us whether our company is making profit or not. He was amazed. The worker exactly knew कि वो figures कहां से आ रही थी. And the worker even said that we know exactly हर घंटे के बाद कितना gross profit बना रहे हैं और हमारी cost of production क्या है. And also that we maintain a ratio of ग्रॉस प्रोडक्शन एंड कॉस्ट 2 पे रखते हैं. अगर ये जब रेशो 2 से नीचे आ जाती है हम कहते हैं कि वी आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट एंड वी ट्राई टू डिवाइस मीन्स टू कीप दिस. द मैन वाज सो अमेज्ड. ऑर्डिनरी टेक्नीशियन न्यू इनसाइड आउट ऑफ दैट बोर्ड. And the manager said, this is the most cherished possession of all the employees. He was so amazed कि open book accounting है और किस तरीके से project management हो रही है, that every person, every employee was involved. Decision making, transparency. And when he concluded his visit, he offered that I would like my organization, जिसके 300 employees थे, to merge with yours so that we could learn. हम आपके मेथड्स ऑफ जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसको हम उसे लर्न कर सकें एंड आर ऑर्गेनाइज. दैट्स हाउ द मर्जर्स टेक प्लेस. अ ब्यूटीफुल एग्जांपल फॉर यू ऑल कि जब आप किसी टीम के साथ काम करते हैं, एवरी पर्सन एट एवरी लेवल, राइट फ्रॉम CEO टू डाउन बिलो, must know what is good for the organization. They must know where the company is losing money and where they are making profit. And once they know that if the company makes profit, we get the share out of it. Therefore, ये जो मैंने आज आपको OD in practice की example दी है, should be a guiding star for you. ऐसी भी organizations दुनिया में काम कर रही हैं जिनमें decision taking, team building इस तरह की है there's nothing hidden from the employees. And that is where the OD comes into play. आखिर में मैं एक चीज पे कंक्लूड करना चाहूंगा कि जब आज मैं शुरू हुआ था कॉर्पोरेट कल्चर से, तो आज अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से चेंज लाऊं कि मैं महसूस करूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चरल चेंज की कोई जरूरत नहीं, ये जो प्रेवलेंट कल्चर है यही ठीक है, लेकिन मैं फलां डिपार्टमेंट में चेंज करना चाहता हूं, यहां से क्वालिटी इंप्रूव करना चाहता हूं, यहां करना चाहता हूं. आई आस्क यू अ क्वेश्चन नाउ, इज दिस OD? क्या ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है जिसके अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में बिल्कुल चेंज ना आए? हालांकि दूसरी चेंजेस से प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है,
ओवरऑल भी इंप्रेशन कंपनी का अच्छा हो रहा है, लेकिन हम कल्चर को चेंज नहीं कर रहे. वुड दिस बी ओडी? परहैप्स आप कहें जनाब यस, ओडी तो है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. गो बैक टू माय फर्स्ट लेक्चर. नो, दिस इज नॉट ओडी. ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में एक बहुत जरूरी चीज है, दैट यू मस्ट चेंज द कल्चर. विदाउट चेंजिंग द कल्चर, organizations will not grow. 21st century organizations hongi hi nahi, they will not be able to compete, because this is the basic premise. Go back to my definition. Behavioral change last tha, using behavioral change science, behavioral change base. Uske baghair organization mein change aa hi nahi sakta. Aaj OD in practice ke baad, you must have a very clear concept. Everything should be very threadbare. You need to focus on the culture of an organization, attitudinal change, behavioral change, values, और मैंने जैसे आपको लेवल्स में बताया, focus at the base. आपके basic assumptions क्या हैं, basic values क्या हैं, वहां से कैसे different level पे change आएगा. So keeping in mind this thing, any change coming into an organization needs to be focused on the behavioral aspect, cultural aspect. Without that, the change will not be a lasting change. I hope you enjoyed it. Next time, मैं अगले लेक्चर के अंदर further change के ऊपर और बात करूंगा. अब we should take practical steps to incorporate change. खुदा हाफिज. See you again.